Most of the people think that grounding is just about being in the ground, spending time in nature, और मिट्टी में गड्ढा खोद लिया है एंड उसमें पैर डाले एंड उसमें बैठ गए. But that's not the truth here. Grounding is much more than what you think of it. Now I'm going to explain you what grounding is and how you can practice grounding और ये कहाँ कहाँ यूज़ होना चाहिए. Like the first thing grounding helps you with is deplete your ego. I mean ego is something जिसमें सब फंसते हैं, सब के सब. Confidence is good, but overconfidence destroy करता है. So what's the biggest problem is we feel that we are the most highest person or we can do it by even not practicing it actually. So actually क्या है, हम लोग रूट से दूर होते जा रहे हैं. So how we can actually practice it, something जो हमारे को actually में वापस से हमारी ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट कर दे एंड एट द वेरी सेम टाइम हमें एक्चुअल पर्सन बना दे जो हमें रहना चाहिए, जो हमारी ऑथेंटिसिटी है, हमारा सोल का नेचर है. Now, most of the people are not aware that what is their soul nature, what is their authenticity. मतलब एक्चुअली में वो कैसे हैं, उनको कैसा होना चाहिए, what makes them happy. बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये एंड बहुत लोगों को इसी में प्रॉब्लम होती है. दैट्स वाई दे लुक अप फॉर द ग्रुप्स, दैट्स वाई दे लुक अप फॉर द सपोर्ट एवरी टाइम व्हेन दे वांट टू लिव देयर लाइफ. सो hello everyone, myself Gagan Walia. I'm a spiritual teacher, guider, or a coach, whatever so you want to call me. And I just try my best to give you guys the techniques or the things by which you can make self-development as well as connect with the spirituality. You can live your life beautifully at the very same time. You can achieve the things you really want to. So now let's move ahead to the video, and what we're going to cover in today's video, we're going to actually cover the things that is what grounding is and how actually it is effective in our life. Grounding, जैसे मैंने कहा, it's not just about being in the nature, being in the park or walking barefoot onto the ground. It's much more than that. Then the second thing we're going to cover is fun games to enjoy present moment and to live authentically. The third thing that we're going to cover in our video is what is the most auspicious time to practice grounding. Now, with the third point, I mean that how you can heal yourself at the very same time you can deplete your ego. So let's move ahead and let's cover what exactly grounding is. तो हम सब लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने गोल्स को लेके इतने सीरियस हो जाते हैं या फिर अपनी जो भी ड्रीम्स हैं उनको इतनी सीरियसली लेने लग जाते हैं कि अपने प्रेजेंट को कोसने लग जाते हैं एंड एट द वेरी सेम टाइम उन गोल्स को ही रियल जीने लग जाते हैं. सो it just helps you with that even. It just not only make you aware of your spiritual side but even let you be in the present and let you live the life you actually should. I mean the goal is okay, you have the goal, but you have to take step. At every step you're going to face things and your focus should be till this much that you are not being afraid of things, you are tackling them with great feeling within you, and you are not obsessed so badly with your goal that you are not taking actions in your life. So grounding helps you with that. So now grounding is a practice also known as earthing, क्योंकि हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, सो इसीलिए इसको अर्थिंग भी कहा जाता है. दैट हेल्प्स यू टू connect or reconnect with your physical world and at the very same time with the present moment. Like for example, I am recording this right now, so this is my reality, and at the very same time हम लोग इमेजिनेशन में कई बार मैंने बोला ना इतना खो जाते हैं कि हम लोग अपनी रियलिटी भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, हमारी लाइफ अभी क्या है. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग फैंटेसीज करते हैं रोमांटिक लाइफ की कि एक ऐसा पार्टनर होगा जिससे कहते हैं कि फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर कुछ भी जो भी तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड व्हाटएवर सो यू आर ड्रीमिंग ऑफ. तो हम लोग कई बार उन फैंटेसीज में इतना हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हम सिंगल हैं. सो दैट इज समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस ग्राउंडिंग सो दैट कि आप बैलेंस ला सको दोनों में ही. इट इज़ ऑल्सो यूज, मैंने बहुत यूज़ किया एग्जाम्स के टाइम पे जब हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर, एंड व्हेन यू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा at the very same time when you face the symptoms of these kinds of things, जब burnout फील कर रहे हो तब एक मोमेंट चाहिए होता है जब हम खुद से कनेक्ट करें या हम रेस्ट पा सकें. सो इट डज नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जस्ट 15 minutes ऑफ दिस ग्राउंडिंग प्रैक्टिस. सम कुछ तो लेंगी टाइम, तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है एंड देन यू गोना फील मच मोर एनर्जी विद इन यू दैट यू कैन एक्चुअली take far better steps in your life
लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के अंदर जो आर्ट में है उसको अपने अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, सो दैट कि वो जब भी पेंटिंग करे तो उसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज हो कि यार आई कैन मेक दिस मच लेवल। तो उस चीज़ के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए खुद के अंदर, ताकि वो क्रिएशन कर सके, उन थॉट्स को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर सके। वरना क्या होगा, थॉट आया कि फिर आई डोंट हैव दिस मच ऑफ एनर्जी और दिस मच ऑफ टाइम, लेट्स डू इट द वे आई कैन। So this is actually the need of us to reconnect with ourselves and to feel empowered and full of energy. So my suggestion would be, आप जब ये प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो उससे पहले अपने आप को रेट करो कि आप कैसा फील करो 1 से लेकर 10 में से। फर्स्ट सपोज आप कर रहे हो 8, कि मेरे को 8 लेवल में फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है वगैरह वगैरह, इसको मैं नंबर 8 करता हूँ। एंड जब आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करो उसके बाद प्रैक्टिस करना, मतलब उसके बाद देखना कि क्या आपका रेंज आई है। दिस विल हेल्प यू अवेयर कि कौन सी आपके साथ प्रैक्टिस ज़्यादा जा रही है। नाउ आई प्रेफर कि ये फार बेटर हेल्प करती है, लाइक मतलब आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करती है आपको अपने आप से कनेक्ट करने में, आपको एनर्जी अंदर फील करने के लिए कि यार आई एम very active today, I'm full of energy today, and I can do the things that I tomorrow or yesterday cannot. Even if you try it for the first time, you're gonna feel the empowerment within you, you're gonna feel the energy within you, you're gonna feel that something has changed. And well, it's all personal experience, आपका जितना भी रेंज आ रहा होगा उस हिसाब से चेंजेस आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि रेंज करना ज़रूर, ताकि आपको पता लगे कि आप पे कितना इफेक्ट हो रहा है और कितना नहीं रहा है। सो Earth is also known as divine feminine or divine feminine energy. When we connect with that, when we connect with the earth, we feel and even heal our divine feminine energy. तो मैंने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी पे एक वीडियो भी बनाई थी, एंड उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब आप डिवाइन फेमिनिन को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपके ना सिर्फ इमोशंस बट आप बहुत ज़्यादा पीस फील करते हो अंदर से। सो इट्स अबाउट द डिवाइन फेमिनिन इज अबाउट रेस्ट एंड द डिवाइन मैस्कुलिन इज अबाउट एक्शन, गो गेटर है वो। एंड द फेमिनिन वन इज लिटिल बिट इंट्यूटिव, लिटिल बिट फर्स्टली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी, respond. So if you are even facing problems with divine feminine energy, you can practice grounding. This will help you far better than the things ever can. और उसमें भी काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस दी थी मैंने, लाइक अगर आपकी कोई पर्टिकुलर ट्रेट खराब हो गया तो आपको डेफिनेटली उसी पे काम करना पड़ेगा, बट ग्राउंडिंग हेल्प्स यू मोस्ट, क्योंकि आप हील कर रहे हो अपने आप को, डिवाइन फेमिनिन से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, सो इट गोना हेल्प यू। So I believe that grounding is the highest experience by which you can connect with the universe, and जहाँ पे आप honest हो, जहाँ पे आपको कहीं दिखावा नहीं करना है कि I should be like this, I should be like that, मुझे ऐसा behave करना है, वैसा behave करना है। You are very honest with your emotions. If you are feeling you have done something wrong, you are very honest with that. And grounding just helps you more far better than whatever the things good, that you are admitting, you are accepting that ये मेरे से हो गया था, या ये चीज़ मैंने पता नहीं क्यों कर दी, या ये कनेक्शन में मैं पता नहीं क्यों आ गई। इट जस्ट हेल्प यू हील्स। अर्थ है, मदर है हमारी, डिवाइन फेमिनिन है, सो द मदर यूनिवर्स हेल्प्स अस, लिसन टू अस, काउंसिल अस, एंड यू गोना फील दैट एक्सपीरियंस, यू गोना एक्चुअली फील दैट थिंग्स आर वर्किंग फ्रॉम और बिहाइंड और वट एवर सो यू वॉन्ट टू से। जो भी चीज़ें हम रेजिस्ट कर रहे होते हैं ना कि यार नहीं नहीं मैं ऐसा फील नहीं कर रही, या नहीं नहीं ये तो है ही नहीं मेरी क्वालिटी, या जो भी हम छुपा रहे होते हैं दुनिया से, वो अगर हम लोग ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते हुए बताते हैं तो वो हील होती है चीज़। वो डेफिनेटली हम लोग यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो सुनते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, और वो हेल्प करते हैं हमें उन चीज़ों में कि यार एक्चुअली में हो सकता है, उस चीज़ को ठीक करा जा सकता है। एंड वो चीज़ इतनी भी बुरी नहीं है कि हमें बहुत रिग्रेट में रहना चाहिए, या खुद को भूल जाना चाहिए, या खुद को कोसना चाहिए, या सेल्फ पिटी होना चाहिए। तो बहुत दिया मैंने तुम्हें ज्ञान, अब जानते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं बाय विच यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड हैव योर ऑथेंटिसिटी, फील योर सेल्फ दैट you are a confident person, or deplete your ego. So what are the techniques? Let's come to this one. So first and foremost, I always suggest meditation. Now थोड़ा सा डिफरेंट है। Now you have to meditate while sitting onto the floor. अगर आप बैठ सकते हो तो ठीक है, नहीं बैठ सकते तो you have to connect your foots with the floor. अब जैसे भी बैठ सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे बैठो। Try to keep your spine straight and you will notice. Now why I suggested this one? अगर आपको पता हो तो आपकी स्पाइन के अंदर चक्रास हैं, एंड द फर्स्ट चक्रा वाज इन योर द लोएस्ट और द एंड ऑफ द स्पाइन, दैट इज रूट चक्रा। रूट चक्रा भी ग्राउंडिंग से रिलेटेड होता है। सो आपका रूट चक्रा हील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब रूट चक्रा हील होता है
तो आपका सारे चक्रों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर वो सारे इम्बैलेंस्ड भी हो लेकिन रूट चक्र एक्टिवेटेड हो, अच्छे से एक्टिवेट हो और बैलेंस्ड हो, तो आप देखोगे कि आपके बाकी सब चक्रास इतने अच्छे से काम नहीं भी कर रहे तो भी काम कर रहे हैं। फार बेटर है कंडीशन। अगर रूट चक्र खराब है लेकिन बाकी सब चक्रास ठीक है तो वो फिर खराब होगा, क्योंकि बेस, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक घर का बेस अगर सही नहीं होगा, यानी कि जो उसकी नींव होती है वो अगर स्ट्रांग नहीं होगी, देन पूरा मकान कितना भी सुंदर बना लो, आलिशान बना लो, इट विल बी इन टू द रिस्क ऑलवेज। नाउ इन दिस वन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई ग्राउंड में बैठो, कोई ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे नेचर हो। इट इज़ ओके अगर आप घर पे अपने रूम पे जहाँ आप मेडिटेशन करते हो वहाँ पे आप मेडिटेशन करना चाहो। मतलब आपको फ्लोर पे करना है वो पर्टिकुलर स्पेस के, मतलब जैसे आप मान लो आप बेड पे करते हो, ठीक है, तो आप बेड के अराउंड जो फ्लोर पड़ रहा है वहाँ पे बैठ के करो। दैट विल हेल्प यू, क्योंकि वाइब्रेशंस तो फ्लो हो रही है ना, वो आपके आसपास हैं, उस रूम में डेफिनेटली वाइब्रेशन चेंज हो चुकी होंगी। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड, जस्ट सिंपली सिट ऑन द फ्लोर, कनेक्ट योर सेल्फ विद द अर्थ, एंड अर्थ इज फ्लोर से आप कनेक्ट कर लोगे, डोंट वरी, इट्स ओके, इट्स फाइन। सो now you have to do, or whether you prefer to do deep breathing or you prefer any chant, like मैंने हमेशा सजेस्ट किया है ग्रीन तारा मंत्र, because it helps you with anxiety, it helps you to feel patience within yourself, feel calmness, and to heal your heart chakra. Actually, it is the most important one to heal your heart chakra. And I think you can chant any mantra you have, or any goddess you or god you pray to. So with this you will let all your chakras heal, and let all your chakras be activated and work well, or far better than what it was being in the past few days. हो सकता है पहले दिन तुम उतना ना देख पाओ चेंज, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि एक ही दिन में हाथ में सरसों तो नहीं उगा रहे ना, सो टाइम लगेगा शायद, बट यू विल फील द चेंज, एंड यू विल डेफिनेटली फील द चेंज। बट यही कहूँगी, ऑथेंटिक रहो, जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे एटलीस्ट तुम सच्चे रहो, वहाँ पे एटलीस्ट तुम जो फील कर रहे हो वो उनके साथ शेयर करो। मैंने पता नहीं कितनी बारी कहा है, मैंने पर्सनल लेवल पे जितने भी लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ दैट डिस्कस द थिंग्स यू वांट टू डिस्कस विद द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स इज़ नॉट जस्ट कि आप कोई एंजल को याद कर रहे हो, आप जिन भी भगवान को पूछते हो, जिन भी भगवान के बारे में आप पढ़ते रहते हो, या जिनसे आप ज़्यादा पर्सनली कनेक्टेड हो, उनके साथ कनेक्ट करो, उन्हें बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे मैं कान्हा जी को करती हूँ, ठीक है, मैं हरे कृष्ण कहती हूँ, सो मैं कान्हा जी को कहती हूँ कि दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग, दिस इज समथिंग मेरे साथ हो रहा है, तो नेक्स्ट डे तो क्या, मेरे को कई बार आवर्स में ही गाइडेंस मिल जाती है कि यार डू दिस, भाग मत, चल चल ये कर और कई बार तो मुझे वो इनर वॉइस से बोलते हैं कि दिस इज समथिंग यू शुड डू। डर किससे रही है, भगवत गीता पढ़ना, भाग कहाँ से रही है, चीज़ें तो यही है। सो यू कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्स, यू कैन कनेक्ट विद द गॉड। आपको अंदर से इंटेंशन लाना है, करेज लाना है, एंड यू हैव टू स्टेप। अभी पिछली वीडियो बनाई थी मैंने, परफेक्शनिज्म मिथ, you have to take the step, you have to empower yourself, no one ever gonna come to empower you, so step up। and अच्छा, मैंने टाइमिंग भी बताई थी नवरात्रि में, बट यू कैन प्रैक्टिस इट एनी टाइम, ठीक है। सो द थिंग इज, मतलब एनी टाइम से मतलब था एनी सीजन, एनी मंथ, कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपको 5:30 से 7:30 के बीच में ये पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपकी एनर्जीज हायर एक्टिवेटेड होती है। तो इस टाइम पे जब आप हीलिंग करते हो, आप प्रैक्टिसेस करते हो, तो आप फार बेटर परफॉर्म कर पाते हो देन यू आर एक्चुअली डूइंग। मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर पाते हो। और अगर आप रात में बैठ पाते हो, आपको लगता है कि यार आई कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली और वट एवर सोल यू आर सराउंडेड विद, सो गो विद द टाइम यू कैन, बट फ्लोर पे बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि तुम कनेक्ट कर सको यूनिवर्स से बहुत अच्छे से। इट जस्ट हेल्प यू टू डिप्लीट योर ईगो। हमारी ईगो कहाँ है, ऊपर है ना, हम लोगों को ज़मीन से दूर कर रही है ना। आजकल तो कोई ज़मीन पे बैठ के खाना भी नहीं खाता है ना। तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ज़मीन पे आना ही नहीं चाह रहे। इतनी सी ईगो तुम्हें गिरानी है, एंड यू विल सी द चेंजेस। लग रहा होगा कि यार नहीं होगा शायद, बट इट्स नॉट हार्ड। तुम्हें एक मंत्र लेना है, 108 बारी, खुद कर सकते हो तो खुद करो, सुनना है सुनो, जैसे भी आप प्रेफर करते हो मेडिटेशन करना वैसे कर लो। और आपको लगता है कि यार मुझसे नहीं होता है, मैं डीप ब्रीदिंग भी नहीं कर सकता हूँ, देन आप सिंपली, यूट्यूब है, इतने सारे मंत्र वहाँ पे अवेलेबल है, आप जोन सा भी पसंद करते हो। जैसे मैंने बोला कि आप, जैसे मैं कान्हा जी को करती हूँ, तो मैंने कोई कान्हा जी का मंत्र ले लिया, जैसे आपने हरे कृष्णा महामंत्र ले लिया, गो विद दैट मंत्र एंड ट्राई टू चैंट इट इफ़ यू कैन। इफ़ यू कांट, सिंपली आपने उसको ज़मीन पे बैठ के सुनना है, you're gonna feel the change. So the second practice in this would be stillness meditation.
Now I practice this the most at the night time or at the time when I feel कि I should take the rest or I should sleep but I can't. So ऐसा स्लीप वाले टाइम पे मत करना, मतलब यानी कि जब तुम्हें मन कर रहा है तुम्हें सोने का बट तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं आई कांट, उस टाइम पे मत करना क्योंकि तुम्हें ज़रूर नींद आ जाएगी. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इट, हाउ यू कैन डू इट एक्चुअली. स्टिलनेस का मतलब क्या है, मूवमेंट नहीं करना है ना. सो इन दिस यू हैव टू डू इज, आपने बैठना है या लेटना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है. मैं लेट गई. सो आपने लेटना है एंड आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सराउंडिंग्स को सुनना है, कोशिश करना है जो भी चल रहा है ना अपने दिमाग से हट के आपने उधर फोकस देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग्स पे. देन द सेकेंड यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन इज योर ब्रीथ. आप कैसे सांस ले रहे हो, कैसे इनहेल कर रहे हो, कितना लंबा इनहेल कर रहे हो. यू जस्ट हैव टू पुट योर फोकस. आपने सोचना नहीं है. और थॉट आ रहे हैं तो आने दो, डेफिनेटली आएंगे. जो भी इमोशंस अंदर हैं आपने स्टोर कर लिए हुए वो डेफिनेटली उठेंगे. सो द सेकेंड प्रैक्टिस सेकेंड स्टेप ऑफ दिस वुड बी कि आपने फोकस करना है अपनी ब्रेथ पे. अब थर्ड स्टेप पे आते हैं. जब आपका फोकस अपनी ब्रेथ पे हो चुका है अब आपने अपनी बॉडी पे अवेयरनेस डालनी है. कैसे एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो हो रही है, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन हो या जो भी आप फील कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है. अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे फोकस दो. कभी हाथ पे दो, कभी पैर पे दो, कभी पेट पे दो, कभी सर पे दो. ट्राई योर बेस्ट कि आप अपनी बॉडी में अवेयरनेस लाने की कोशिश करो. एंड जस्ट बी स्टिल, ट्राई टू रेस्ट, पुट योर फोकस. ट्राई करो कि कहीं कोई टेंशन तो नहीं है, कहीं कोई आपको खिंचाव फील हो रहा है, भारी लग रहा है, कहीं कहीं आपको लग रहा है कि कुछ स्टोर्ड है या कुछ खींच रहा है. एंड आप जैसे ही आप ये स्टिलनेस की प्रैक्टिस करने लग जाओगे, करते रहोगे, 5 मिनट होंगे आपको थॉट्स आने लग जाएंगे. थॉट्स इन द सेंस वो इमोशंस, वो सिचुएशंस याद आने लग जाएंगे जहाँ पे आपकी एनर्जी स्टक है. अब इससे क्या हो रहा है, इससे आप एक्चुअली में ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आपने अपने आप को कहीं शेल करके रखा हुआ है. कहीं आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो. और जब तक आप उसे रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड अपना फुलेस्ट नहीं फील कर पाओगे. सो नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड प्रैक्टिस दिस वन. कैसे करना है, सिंपली दिन में नहीं टाइम मिल रहा छोड़ दो, कोई बात नहीं, रात में तो है. सोने से पहले आपने ऐसे कर लिया और नींद आ जाएगी डेफिनेटली. तो नहीं आए तो बहुत अच्छा यार, आप मेडिटेशन करते हो और आप कॉन्शियसली सो रहे होते हो उसके अंदर, ठीक है. सो नाउ हाउ यू कैन डू दैट इज एट द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग नाइट में. तो स्लीपिंग मोड सो आप लेटने के लिए गए, सोने के लिए गए, आपने सिंपली लेटे नॉर्मली जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है. कोशिश करो कि आप सीधे लेटो, कोई भी आड़े टेढ़े ऐसे करके नहीं लेटना है, सिंपली सीधा. नाउ ऐसे हाथ ओपन रखना, ऐसे बंद नहीं, कुछ नहीं रखना. या तो ऐसे में सोना या तो ऐसे में सोना. कैसे हो रहा है बट ठीक है. अपनी बॉडी में अवेयरनेस लास्ट है. सबसे पहले सराउंडिंग्स को सुनना है, देन आपने अपनी ब्रीथ को सुनना है, देन आपने अपनी बॉडी पे अवेयरनेस डालनी है कि कैसी फील हो रही है, कहाँ कितनी एनर्जी फ्लो हो रही है, कितना ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है. ये चीज़ फील करनी है. और आप फील करोगे कि योर सेल्फ द रेस्ट, बी रेस्ट. जैसे आपका बर्थडे है और आज तो आप बस चैन से सोगे या फिर आपकी जेब में करोड़ों रुपए हैं और आप बस सोने के लिए बने हो. आप एंजॉय कर, गिव योर सेल्फ दिस रेस्ट. इससे हो क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हील हो रही है क्योंकि आप रेस्ट में जा रहे हो, खुद की बॉडी को टाइम दे रहे हो. हमारी बॉडी भी तो 24 घंटे काम कर रही है ना, तो उसको भी तो टाइम चाहिए कि वो जी सके, उसको भी तो एक मोमेंट चाहिए कि वो भी सांस लो. सो गिव दैट टाइम टू योर बॉडी. एंड जैसे जैसे आप करोगे तो आपको थॉट्स आएंगे, है ना, मैंने बताया सिचुएशंस आएंगे. आप नाउ उन सिचुएशंस में आपने एक्सेप्टेंस डालना, फील करना है. जो भी इमोशन है उसको फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करना, उसे वहाँ वैसा ही एक्सेप्ट करना. इट्स फाइन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड यू हैव टू से टू योरसेल्फ इट्स ओके, इट्स फाइन, यू कैन फील योरसेल्फ. और क्या हो गया, अब तो वो चीज़ गई ना, अब तो ख़त्म. अब तो ना वो है ना हम वैसे. सो गिव योरसेल्फ द स्पेस दैट इज नीडेड. तुम खुद को एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील कहाँ से करोगे. गिव योरसेल्फ द एक्सेप्टेंस दैट इज नीडेड. एंड जब एक्सेप्टेड हो जाएंगी सब चीज़ें देन यू विल फील द कॉन्शियस स्लीप विद इन यू. दैट इज आप बहुत रेस्ट मोड पे हो पर एट द वेरी सेम टाइम आप कॉन्शियस हो कि कुछ अराउंड चल रहा है. हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में अवेयरनेस ज़्यादा फील होने लग जाए, अपनी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा फील होने लग जाए. रिस्टोर हो रहा है ना, सब हील हो रहा है. टाइम दे रहे हो बॉडी को तो वो हील हो रहा है, तो वो एक्टिवेट हो रहा है. अब बॉडी फील कर रही है एनर्जी. अब क्या करना, कुछ बस आराम से. अगर दिन में कर रहे हो तो
यू हैव टू कीप द टाइम, मतलब जितना टाइम तुम्हें लगे कि यार हाँ, नाउ आई फील कि मैं हील्ड हूँ, नाउ आई फील कि मैं डिटॉक्स हो चुकी हूँ, देन आप उठ जाओ। एंड उठना कैसे है कि आपने सिंपली अगेन बैक में अपने पहले सराउंडिंग्स पे फोकस डालने की कोशिश करनी है, या ऐसे कर लो कि पहले ब्रेथ पे फोकस लाए, फिर सराउंडिंग्स पे लाए, फिर धीरे धीरे करके आँख खोली, फिर खुद उठे। और जब आप उठोगे आपको लगेगा कि बॉडी उठ नहीं पा रही है शायद, या हम लोग बहुत जल्दी मूव नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इसलिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी एकदम से रेस्ट पे थी, अभी उसे एक्टिवेट होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा माइनस ही लगेगा, 5 मिनट कुछ। देन यू विल फील द थिंग्स एज यूजुअल और एज नॉर्मल। और अगर आप रात में कर रहे हो देन आपने बस फिर सो जाना, वैसे तो नींद आ ही जाएगी, बट अगर नहीं आए देन यू हैव टू कम्प्लीटली एंड दिस वन। आपने आंखें खोलनी खोल लेना, नहीं खोलनी तो भी आप सोने की ट्राई करना, नींद आ जाएगी। सो द थर्ड ग्राउंडिंग प्रैक्टिस यू कैन डू to deplete your ego, connect with your root chakra and as well as all chakras and to feel the authenticity more into you. देखो ऐसा है, फर्स्ट डे से तुम्हें ऑथेंटिक नहीं फील होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम पहले दिन ही करने गए प्रैक्टिस और तुम्हें पता लग जाएगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं। एक्सपीरियंसेस होंगे, अवेयरनेस डेवलप होनी शुरू होगी, बेटरमेंट फील होगा, डेफिनेटली कह रही हूँ यू विल फील द चेंज। पर ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में सब क्लियर कर जाओगे, आसमान को छू लोगे, नहीं होगा, हाथ में सरसों मत उगाना। The third is walking barefoot. As जो मैंने सबसे पहले बोला था कि it's not just about this but ये भी पार्ट है। ग्राउंडिंग अधूरा है शायद अगर तुम barefoot वॉक नहीं करते। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम ग्रास पे ही करो barefoot वॉक, बट इट्स ओके अगर तुम barefoot वॉक मड पे भी, मतलब लाइक मिट्टी में भी कर लो या फिर छत पे भी कर रहे हो तो भी फाइन होता है। पेबल्स पे यानी कि कोई मार्बल वगैरह, मतलब मार्बल नहीं, रॉक टाइप में होता है ना, उस पे कर रहे हो तो भी ठीक रहता है। अगर तुम ग्रास पे कर रहे हो तो एंड एट द टाइम यू शुड नॉट बी विद डिजिटल गैजेट्स, यू शुड बी विद योर सेल्फ। अवेयरनेस डालनी है तो खुद के साथ तो रहना ही पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑथेंटिसिटी तभी फील होगी, तभी रियलाइज होंगी चीज़ें, इट्स इंपॉर्टेंट। लीव योर गैजेट्स, लीव योर थिंग्स अवे फ्रॉम यू, टोटली अवे कि तुम्हें नोटिफिकेशन की भी आवाज़ आए, ठीक है। कितने टाइम वॉक करना है? 15 मिनट्स इज इनफ। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत हालत ख़राब है, गो विद हाफ आवर, आई थिंक इतना इनफ है। यू विल फील कि कुछ तो चेंज हो रहा है। और जिन लोगों का रूट चक्र खराब होता है ना, यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, उनके साथ ये होता है कि उनको पहले घास है ना उसमें चलने में प्रॉब्लम आती है, लाइक उनको डर लगने लग जाता है, एकदम से वो उठती है, उनको लगता है कोई सांप ना हो, कोई कीड़ा ना हो, कुछ हो। अगर ऐसा हो रहा है हो सकता है आप डरते हो उनसे, बट एक लेवल ऑफ एंजाइटी अंदर फील होती है बिगिनिंग में। सो अगर ऐसा हो रहा है तो गो अहेड, आप अच्छा जा रहे हो, मुझे भी 202 दिख रहा है, यानी कि यूनिवर्स कह रही है कि सही कर रही है, चलो बढ़ते हैं। सो आपको घास पे चलना है, नहीं चल सकती घास पे तो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप लोगों ने वैसे चलना है, यू हैव टू थिंग्स लाइक दैट। सो द नेक्स्ट इज अनुलोम विलोम। ये तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनुलोम विलोम। एक छोटा सा ब्रीदिंग योगा है या एक्सरसाइज है, बट इतना इफेक्टफुल है कि पूछो मत। आई पर्सनली प्रेफर दिस। मतलब आपको लग रहा है कि यार आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है तब आप कर सकते हो। आपको लगता है कि अभी मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, उस टाइम पे कर सकते हो। एंड जब आपको लग रहा है कि यार मे बी आई वॉज बीइंग मोर ऑफ इन टू द ईगो और in a energy which I should not serve. So at that time even you can practice Anulom Vilom, where you have to focus on your breath and कर लेना, it's easy। आपने ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके पढ़ लेना, it's better। क्योंकि मैं किसी भी तरीके से बताऊंगी वो आप इतना याद रखो, नहीं रख पाओ तो वो डिफिकल्ट है ना। So the next one is digital detox, where you are focusing on your surroundings। फोकसिंग ऑन योर सराउंडिंग से मतलब है ये मैं ज़्यादातर ये बताती हूँ, जब आप छत पे जा सकते हो या बालकनी में हो तब आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, एनालाइज करने से ज़्यादा, मतलब इन द सेंस आप उन पे क्रिएशन देने से ज़्यादा आप जो जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो। देख रहे हो क्या कैसा है, कहाँ है, क्यों है, नहीं कर रहे क्यों है नहीं कर रहे, बट हाँ आप कोशिश कर रहे हो देखने की। कई बार क्या होता है हम लोग बहुत बोलने वाली एनर्जी में होते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ओवर एक्टिवेटेड होती है, जिसके कारण हम लोग किसी सामने वाले बंदे को बोलने ही नहीं देते, अपना ही बोलते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। सो टू बैलेंस दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर सराउंडिंग्स, और वो बहुत हेल्पफुल रहता है फॉर अगर आपने बहुत स्क्रीन टाइम किया हो तब भी हेल्प होता है, मतलब जैसे आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड थे इन वॉचिंग रील्स और वीडियोज़ और वट एवर। So concentrate on the basics of your surroundings rather than
how you feel about them, and try to analyze in such a way कि ये कैसा सा लग रहा है, like judgments don't देने लग जाते हैं ना, इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया. Just observe, just view the things. तो मुझे अभी भी याद आया दैट अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम गुस्सा करने वाले इंसान हो नहीं, जो बहुत ही पेशेंटली एक्ट करते हैं, जो रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे पर्सन हो, लेकिन तुम्हें ऑल ऑफ सडन आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, या फिर कोई भी इमोशन बहुत ओवरफ्लो हो रहा है, ओवर एक्ट हो रहा है, देन इवन यू नीड ग्राउंडिंग. एक्चुअली में इम्बैलेंस हो चुका है मैस्कुलिन एज वेल एज फेमिनिन एनर्जी में, जिसके कारण आपको ये इश्यूज हो रहे हैं. सो यू नीड टू बैलेंस देम, एंड ग्राउंडिंग इज द बेस्ट वे यू कैन बैलेंस देम. बाकी पर्टिकुलर एक्ट पे अवेयरनेस डालो एंड उसको थोड़ा सा डिप्लीट करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है. बाकी ग्राउंडिंग वर्क्स, डेफिनेटली वर्क, इट विल. सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी कि और क्या क्या हमारे पास ग्राउंडिंग की प्रैक्टिसेस है. नाउ द नेक्स्ट वन इज डिजिटल डिटॉक्स. सब जानते हैं, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें लगता है ना यार कि क्या ही मिल जाएगा, एक दिन फ़ोन नहीं भी यूज़ किया तो बाकी के 6 दिन तो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें ऐसा क्या खास हो जाएगा. नहीं, इट विल वर्क. कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी लाइफ में अवेयरनेस नहीं ला रहे होते, हम कोशिश, एक्चुअली सोल्यूशन हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलवेज एंड ऑलवेज स्क्रीन टाइम इतना हाई है हमारा, हम लोग कभी यहाँ बिजी हैं, कभी वहाँ बिजी हैं, हम खुद को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, खुद के साथ कनेक्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे. तो हम लोगों को सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे? जब तक तुम खुद तक पहुँचोगे ही नहीं, तो तुम्हें सुनाई कैसे देगा कि यूनिवर्स कहना क्या चाह रहा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिजिटल डिटॉक्स. तो डिजिटल डिटॉक्स का हमें सबसे पहला तो पता है कि गैजेट्स से दूर रहना है, बट उसके बाद की मैंने 3 तरीके के डिजिटल डिटॉक्स बना रखे हैं. द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग योर सराउंडिंग्स और ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. यू आर मौन व्रत कहते हैं ना, काइंड ऑफ वो. तो यू आर ट्राइंग टू बीइंग इन टू एक्चुअली एक्ट इन हर्मिट मोड, जहाँ पे आप चीज़ों पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो या चीज़ों पे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो. मोर ऑफ आप ऑब्जर्विंग वाली एनर्जी में कि क्या कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इंसान इमोशंस में हम लोग कितना एक्ट करते हैं, जस्ट सब चीज़ें लाइफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो. द सेकेंड वन इज इन्जॉइंग लिटिल मोमेंट्स ऑफ लाइफ. कितना ईजी होता है ना दुखी होना, 1 सेकेंड में तुम कोई भी दुख याद करके दुखी हो सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय शायद ही हम लोग करते हैं. आज की लाइफ में तो बिल्कुल भूल से चुके हैं. लाइक पहले तो बचपन में ऐसे कोई छुपा छुपाए और बट एवर सो बहुत सी गेम्स खेल खेल के हम लोग अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी को छोटा छोटा सा और एंजॉय कर लेते थे. बट नाउ हम लोगों ने अब सीख लिया कि यार यू नो वट, ये भी चीज़ें हैं, ये भी चीज़ें हैं, कहाँ से जी लें, कहाँ से खुद को एक टाइम दे दें. फॉर एग्जाम्पल तुम खाना खाने बैठे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक मोमेंट मिला है कि तुम गाना गा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, enjoy that time. Or if you don't have any friends or any kind of group with you, any family even, then enjoy it with yourself. Enjoy it actually. So the third one is about move your body. Now मूवमेंट मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल मूवमेंट में मैंने बताया है हमेशा, मूव योर बॉडी द वे यू लव. इट कुड बी डांस, इट कुड बी एरोबिक्स, इट कुड बी एक्सरसाइज, but not just focusing on to muscles, not just focusing on making yourself figured or beautiful or sexy, but even making yourself feel the fullest. तो डिजिटल डिटॉक्स में मूवमेंट ला रही हूँ. नाउ व्हाट दिस मीन इज, आपने फ़ोन को हटा दिया, अपने म्यूजिक्स को हटा दिया और अपने मन से म्यूजिक लिया. ठीक है, खुद ही ऐसे मुझे एक वो इमेजिनरी दिखाते ना कि इमेजिनरी वो अपनी बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट, डू इट विद योरसेल्फ फुलेस्ट. और हेल्प के लिए बोल देती हूँ, इन्जॉय विद योर शेडो, डांस विद योर शेडो. क्योंकि हम लोग एक दूसरे को देख के ज़्यादातर डांस करते हैं ना, क्लब में हो, कहीं आसपास हो, कहीं पे भी हो, हम लोग एक दूसरे को देख के डांस ज़्यादा करते हैं. सो इट्स बेटर टू डांस विद योर शेडो. यू विल फील मोर कनेक्शन विद योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस में डेफिनेटली बूस्ट आएगा. जो तुम इन्जॉय योर ओन कंपनी होता है, बेस्ट फील होती है. अब बच्चों को देखोगे, बच्चे हमेशा अपनी शेडो के साथ डांस कर रहे होते हैं, शेडो के साथ जी रहे होते हैं, और उसी में उनको बड़ी खुशी मिल रही होती है. लिटिलेस्ट मोमेंट वाला बोला था. तो लिटिलेस्ट मोमेंट में ऐसे ही कहीं तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, ऑल ऑफ सडन अपनी शेडो को देखो और कहो मजे ले जिंदगी के. क्या रखा है इस सब में, क्या रखा है इतनी टेंशन लेके तुझे मिल गया क्या? वो नहीं मिला ना, चल फिर. लिटिल मोमेंट्स लाइक वॉक करो. वॉक आपको, फॉर एग्जांपल आपको कहीं से कहीं जाना है, कोई भी ऐसा डिस्टेंस है जो आपको, फॉर एग्जांपल आपको घर से दूध लेने ही जाना है, ठीक है, दूध वाले की दुकान तक जाना है, तो सिंपली अब जब जा रहे हो, इन्जॉय दैट मोमेंट, इन्जॉय दैट वॉक. देखो चीज़ों को, अरे इसका सही है यार, ये पौधों का या ये बर्ड्स का सही है, इनको तो बस उड़ना है, खाना ढूंढना है, ज़िंदगी सही है इनकी. इन्जॉय दैट लिटिल मोमेंट्स.
किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को ऐसा नहीं सोचना कि इसका सही हो गया, मतलब ठीक है थोड़ा सोचो, पर ये सब सोचने में तुम्हें रिग्रेट नहीं लाना अपने अंदर, समझ रहे हो? तुम्हें हैप्पीनेस अपने अंदर सर्व करनी है, फेक नहीं हो रहा, बट जब तुम धीरे धीरे करके शुरू करोगे ना, तो तुम देखोगे कि तुम अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि तुम खुद के साथ जियो, ठीक है? तो तुम अब चीज़ों को लाइफ में स्ट्रेस है, चैलेंजेस हैं, तो तुम उसे ऐसे नहीं ले रहे कि यार यही है, यू आर थिंक लाइक ये भी है, परसेप्शन चेंज हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज बीइंग योर ओन बेस्ट फ्रेंड बाय जर्नलिंग टू योर सेल्फ। जैसे हम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, जैसे हम लोग अपने कुछ भी जो भी लव्ड वंस हैं उनसे बात करते हैं, वैसे ही हम लोग खुद से बात करने वाले। नाउ इन दिस वी गोना टॉक विद आवर सेल्फ ऑन टू द पेज, ऑन टू डायरी, वट एवर सो यू प्रेफर। नाउ इन दिस वी गोना डिस्कस हाउ लाइफ इज एक्चुअली गोइंग ऑन, कैसी फील हो रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो लिखने वाले हैं। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम लिखोगे आपको उसका ना सोल्यूशन आने लग जाएगा, जो हम थॉट्स लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो, तो सबसे पहला थॉट आया कि स्क्रीन टाइम कम कर ले पहले अपना, इसीलिए नहीं हो पा रहा तो वो आपने लिख लिया। Whatever so that was coming to your mind, discuss it, chat with yourself on to the page। शायद अभी लेम लग रहा हो, बट जब तुम करने जाओगे तुम बहुत इंजॉय करने वाले हो कि ओ यार तो खुद की अप्रिशिएट भी कर सकते हो, बट एट द वेरी सेम टाइम आपने खुद को डीमोटिवेट नहीं करना, मोटिवेट करना है। तो डिस्कस द थिंग्स यू वांट टू, अपना मन भी हल्का कर सकते हो और तुम अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अपनी लाइफ भी डिस्कस कर सकते हो, जो तुम प्रेफर करते हो वो करना। सो फॉर सम ग्राउंडिंग कम्स विद changing your appearance, changing your personality, how you looks, how you style yourself। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अपने आप को ऐसे स्टाइल किया हुआ है, मैंने अभी अपने बाल थोड़े से बांध रखे हैं, थोड़े से खुले रखे हैं ना। आई कैन इवन कीप इट बाय टोटली बांध सकती हूँ मैं, इसमें यहाँ पे ब्रेड्स बना के एक अलग सा स्टाइल बना सकती हूँ। कुछ लोग कट करवा लेते हैं, तो बालों को कट करवा लिया, जैसे भी आप अपीयरेंस में चेंज ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी शर्ट पहनी हुई, इसकी जगह सॉरी टी शर्ट पहनी हुई है, तो टी शर्ट की जगह मैंने सूट पहन लिया। वट एवर सो यू कैन चेंज लिटिल थिंग्स और द बिगेस्ट थिंग, वट एवर सो यू प्रेफर, चेंज योर पर्सनैलिटी। विद दिस इवन ग्राउंडिंग कम्स टू यू, ग्राउंडिंग आप फील करते हो क्योंकि आपको लगता है यार ये जो मैं अभी तक अपने आप को डिफाइन कर रही थी, मैं ये नहीं थी, मैं ऐसी भी हूँ, मैं इस तरह से भी रह सकती हूँ, मैं इस वे में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। अवेयरनेस आ रही है ना खुद में, क्योंकि तुम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो। आई होप आप समझ रहे हो। नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। योर सेल्फ केयर प्रैक्टिस बिगिन from relaxing shower to manicure, pedicure or any skincare routine or anything you prefer actually। So self care जो है वो बहुत सी तरीक़ों से की जा सकती है, बट रिलैक्सेशन और वो जो एक मस्त फीलिंग मिलती है ना, वो जो एक लगता है कि यार वी गिव अवर सेल्फ अ टाइम टू फील एक्चुअली, एंड रेजुनेटेड फील होता है यार बहुत। सो इट कुड बी रिलैक्सिंग शावर, अ रिलैक्सिंग बाथ, जहाँ आपने बहुत ही टाइम लगा के नहा के आए हो। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में भाग रहे हो कि ये भी करना है वो भी करना है वगैरह। आज आपने डिसाइड किया कुछ नहीं, आज मैं बस चैन से नहाने वाली हूँ, बस किसी की नहीं पड़ी मेरे को आज यार उसी दौरान बीच में कॉल आ जाते हैं या कुछ ऐसा घट जाता है, बट स्टिल वी हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। जब भी मिले तब लो एंड डू द मैनिक्योर पेडिक्योर व्हाटएवर सो यू प्रेफर। Small grounding techniques. Grounding is actually being in present now, trying to attempt for awareness to yourself, time to connect with yourself, connect with your authenticity, so that आपको पता लग सके कि जिस जहाँ पे मैं हूँ, it's not only the thing, यही संसार नहीं है सिर्फ, इससे भी ऊपर है चीज़ें, लोग भी हैं, मुझसे भी ज़्यादा लोगों को पता होगा, डेफिनेटली होगा। सो दिस इज़ हाउ ग्राउंडिंग इज एक्चुअली। तो अब मैं अपना पर्सनल बताने जा रहा हूँ। इट्स दी बेस्ट, एंड इसमें आप हायर वाइब्रेशंस में एकदम से टैप इन कर जाते हो, मतलब एकदम से ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं मेडिटेशन काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप भी कर रहे होगे तो आप भी बहुत जल्दी फील कर पाओगे, एंड यू विल फील द चेंज, यू विल फील कि आपकी वाइब्रेशंस हाई हुई है। सो दैट इज़ a practice where you can feel self-love, you can raise your vibrations, you can instantly feel loved and even feel कि हाँ कुछ हो, definitely कुछ हो। फार बेटर देन विद द वर्ल्ड इज, मतलब आपसे अच्छे भी लोग हैं, आपसे बुरे भी लोग हैं, तो आप अच्छे हो उनसे तो अच्छे हो ना। यहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ हम हैं, इतना समझना पड़ेगा हमें, और हमसे भी नीचे लोग हैं, इतना भी समझना पड़ेगा। तो लेट्स डम कि ये एक्सरसाइज है क्या, ये एक्सरसाइज करें बताओ, ये प्रैक्टिस है क्या। दिस प्रैक्टिस इज वेयर यू हैव टू फील द विंड। आपने वो गाना सुना है, दैट इज कैसे हुआ, मैंने पहला प्यार लिख दिया था कबीर सिंह मूवी का। You can actually play that song or you can play any other song that you love, और जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हो। आपको कोई भी गाना लगा लेना है जो भी आपका फेवरेट हो, या फिर फेवरेट में सैड नहीं होना चाहिए, बता रही हूँ अभी। सो
आपने कोई भी अच्छा सा गाना लेना है, जो भी आपको लगता है रोमांटिक है, अच्छा है, आपको एकदम से बहुत ही अच्छा लगता है उससे। आफरी आफरी, वो गाना अच्छा है। देन काफ़ी सारे हैं यार, एक क्या बताऊँ तुम्हें। सो यू हैव टू फील द विंड। अब मैं पढ़ के ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने लिख लिया, ठीक है। So now you have to experience the wind while listening to that song. It's like the nature is hugging you or the universe is loving you, hugging you so closely. You can keep your eyes closed, most preferable आंखें close ही रखना, barefoot रहना, क्योंकि मज़ा तो उसी में है यार। Actually let yourself feel the air, the wind. और ये तुम रूम में नहीं कर सकते, it's not preferable, मतलब you have to take a, छत पे चले जाओ, बेटर है। ग्राउंड में तो फिर आंटियाँ भी आ जाती हैं थोड़ा सा। कोई तुम्हें पागल है ना समझो, तो बेटर है तुम बालकनी में प्रैक्टिस कर लो। बेटर है तुम कोई ओपन स्पेस पे कर लो जहाँ पे तुम्हें लगता है कि तुम्हें विंड भी मिल जाएगी, यानी कि तुम हवा को भी फील कर पाओगे, एंड एट द वेरी सेम टाइम तुम कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें। सो स्टेप अहेड, आप नंगे पैर हो, आप चल रही हो आंखें बंद करके, आपके आर्म्स ऐसे खुले, कैसे समझाऊँ, ऐसे नहीं रखने हैं बट हाँ आप जो एक ऐसे वो शाहरुख खान वाला है ना ऐसे, तो आपने खुले हाथ रखे हुए हैं। यू आर स्टेपिंग, आगे बढ़ रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक एक स्टेप जब तुम ले रहे हो, फील द विंड, तुम्हारी तरफ हवा चल रही है, विपरीत भी चल रही है तो पीछे से हक कर रहे हैं, पीछे से यूनिवर्स हक कर रही है। फील द यूनिवर्स एनर्जी, बी ओपन टू रिसीव यूनिवर्स एनर्जी एंड ब्लेसिंग्स। नाउ स्लोली स्टार्ट हगिंग योरसेल्फ, खुद को ऐसे हक करना शुरू करो। फील द एनर्जी, फील द लव एनर्जी विद यू, जैसे हम किसी और को प्यार कर रहे हैं, जैसे हम कोई और है जिसको हम प्यार दे रहे हैं। गिव योरसेल्फ द अनकंडीशनल एनर्जी। नाउ यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सॉन्ग, मैंने पहले बोल दिया था। सिंपली टैप बैक इन योर एनर्जीज, टैप बैक, स्टेप बैक, फील कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप सपोर्टेड हो। फील, फील एवरी लिरिक ऑफ सॉन्ग, जो भी वो कह रहे हैं। कैसे हुआ ज़रूर से लिखना, वो अच्छा है, डेफिनेटली यू विल फील द लव। और लव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जब आप हायर वाइब्रेशंस में होते हो तो आप अनकंडीशनल लव में होते हो, एंड विद दैट यू आर फार ईजियर टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। मतलब आपने आज मैनिफेस्टेशन शुरू हुई और आप बहुत क्लियर हो जाते हो इवन कि आपको आज मैनिफेस्टेशन करनी है। जैसे आज आपको हाईएस्ट एनर्जी में यूनिवर्स को मैसेज भेजना है कि ये मुझे चाहिए, देन आपको सरेंडर करना है। वो सब आपको ना लाइन बाय लाइन समझ आ जाता है कि हाँ, नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई हैव टू सरेंडर, नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई हैव टू शो ग्रैटिट्यूड, व्हेन आई हैव टू शो माय फेथ ऑन टू द यूनिवर्स, क्योंकि टेस्टिंग पीरियड भी तो आएगा ना, वो भी सब कुछ होगा। सो यू एक्चुअली बोलूँ तो टैप इनटू योर इंट्यूशन। इवन क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है जब आप प्रेजेंट में जीते हो, जब आप ग्रैटिट्यूड में जीते हो, जब आप अच्छे से जीते हो, जब आप अनकंडीशनल लव में जीते हो। So all the practices that I have discussed, it is really important for you to live yourself, to be authentic, and to let yourself feel the openness, let yourself live freely. Actually, you must enjoy it like आज तुम्हारा बर्थडे हो, या आज तुम्हारे को जो हो जाए, आज तुम्हें कुछ बुरा सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है बुरा। बुरी चीज़ों की तरफ तुम्हें ध्यान ही नहीं देना, नेगेटिव कभी वैसे करनी काट देना, कहते हैं ना हमारे। तो let the negativity be destroyed in front of your positivity, in front of your self love, and feel the aura actually within you. These small practices not just give you relaxation, but even give you a chance to live authentically, to live more of your life fullest, and to be grateful for what you have in your today. Actually, we all forget that things are there which we have demanded yesterday or any time in the past. जो भी हम चाह रहे थे कि यार ये मिल जाए फिर लाइफ सही लगेगी, आज वो चीज़ तुम्हारे पास है लेकिन तुम्हें आज लग रहा है कि वो चीज़ नहीं है शायद उतनी, अब ये चाहिए। सो show your gratitude towards these things even, it's important. We need to maintain the balance. No one ever gonna come and make us aware that balance is needed. शायद यूनिवर्स एक से 5 बार तुम्हें भेजे हुए मैसेजेस तुम्हें बताए भी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द बैलेंस। पर अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो डेफिनेटली यू विल फील द एंजाइटी, you will feel the anxiousness within you and the things like nothing is working for you. But let you surrender and you will feel the universe is actually making you far better than what you were. So as I said in the beginning, check in your energy before doing any practice. Go for the check-in, have yourself rate, and in the between of range between 1 to 10, range yourself, range your feelings, range your anxiety or whatever so you're feeling, range yourself first, and after practicing range yourself again. You will be aware कि what is working for you and what is not working for you.
क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। जैसी मैं हूँ या जो चीज़ें मुझे पता है, ज़रूरी नहीं है ना आपको भी पता हो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग जानें कि हमारे लिए क्या चीज़ काम कर रही है और क्या नहीं काम कर रही है, ताकि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ के थ्रू अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की या फिर अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की, उस टाइम पे हम वो चीज़ प्रैक्टिस कर सकें। सो लेट्स मूव अहेड टू फन गेम्स टू एंजॉय योर प्रेजेंट। मैंने पहले भी बोला था कि कुछ ऐसी गेम्स बताने वाले हूँ, क्योंकि हम सब लोग इतने बड़े बन चुके हैं कि हम लोग गेम्स खेलना ही छोड़ दिया है एंड हम लोगों ने अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही छोड़ दिया है। सो छोटी छोटी सी फन गेम्स हैं जो शायद आप अकेले भी खेल सकते हो, एंड अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ भी है तो आप उनके साथ भी खेल सकते हो। अपने साथ साथ दूसरों को भी स्प्रेड करो लव एंड एंजॉय। सो द फर्स्ट फन गेम इज होल्ड अ पीस ऑफ आइस ऑन टू योर हैंड। कोई सा भी सीजन चल रहा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी हो, या तो मुंबई में रहते हो तो तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, तो होल्ड अ पीस ऑफ आइस विद इन योर हैंड, एंजॉय। यहाँ से यहाँ जगल करो, ऐसे ऐसे करके उसको पूरा मेल्ट होने देना है। गिव योरसेल्फ दिस चैलेंज एंड एंजॉय इट फुलेस्ट। लाइक जैसे हम लोग बचपन में कुछ खेलते थे ना, पिट्टू वगैरह। सो दीज काइंड ऑफ गेम्स यू कैन एंजॉय इट विद योर फ्रेंड्स, कि सबके साथ चैलेंज लगाए कि किसने पूरा मेल्ट कर लिया, किसने नहीं किया, एक ही हाथ में कर लिया कि नहीं, या फिर ऐसे ऐसे जगल जगल कर करके एक दूसरे को पास कर रहे हो। टर्न इट ऑन योर ओन वे, जैसे भी आपको प्रेफर होता है। होल्ड आइस ऑफ पीस ऑफ आइस आइस ऑफ पीस। सो हाथ में लेनी है आइस एंड यू हैव टू एंजॉय इन योर ओन वे, जैसे भी आपको लगता है। द सेकेंड फन गेम इज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 100। इतना डिफिकल्ट रहता है ये कई बारी कि यू जस्ट फॉल अलॉट। आप फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो कि यू हैव टू काउंट, यू हैव टू काउंट, देखते हैं कौन सबसे पहले कर लेगा। और यू कैन डू इट अलोन इवन, एंड कोशिश करो एक टाइमर सेट कर लो कि 2 मिनट के अंदर बोलना है 100 से लेके सारा उल्टे टाइम 99, 98, 97 ऐसे करके सारा बोलना है। 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी तुम्हें टाइम ठीक लगता हो। एन्जॉय इट, एन्जॉयमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट गेम इज फॉर दोस्त जिनके साथ कोई नहीं है, flirt with yourself. And the best way to flirt with yourself is mirror, और the second one is shadow. मैंने पहले भी बोला था shadow में बहुत मजा आता है। Flirt with yourself the way you love actually. We often used to flirt with the world, कैसे भी करके हम लोग किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कुछ भी करते हैं, पर हम खुद को ऐसे निगलेक्ट करते हैं। जैसे हम खुद के बारे में सोच के देखो, अवेयरनेस डालना आज कि हम लोग अपने आप को कितना अच्छा बोलते हैं और कितना ज़्यादा हम लोग अपने आप के बारे में बस खराब ही चीज़ें बोलते हैं। जस्ट लाइक एनीवन इन योर लाइफ, कोई भी हो सकता है। सो ट्राई टू पुट अवेयरनेस कि आज आपने अपने आप को कितने अच्छे वर्ड्स बोले, कितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड किया और खुद को बोला ओह आज तो बढ़िया लग रहा है यार। बिल्कुल एक फन वे से कुछ बोला, बिल्कुल अच्छा सा फील किया। अप्रिशिएट योरसेल्फ, फ्लर्ट विद योरसेल्फ, you will feel happy. So now let's come to the last topic, or the last thing we're going to cover in this video, that is what is the most auspicious time to practice grounding. Now I personally say that to deplete your ego and to heal yourself, the most auspicious time is when there's a full moon, when there's a new moon, or any time of ritual वाला, festival वाला। जैसे अभी नवरात्रि था, नवरात्रों वाला था, उसमें मैं बताया था कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन हील योरसेल्फ। मोस्ट ऑस्पिशियस टाइम होते हैं क्योंकि इसमें यूनिवर्स खुद अलाउ करती है कि आप लोग अपने आप को रिजुविनेट कर सको, खुद के साथ बैठो, इन वर्क करो अभी। सो अब आप गूगल कर सकते हो बहुत आराम से और बहुत जल्दी वीडियोस मिल जाती हैं अगर आप सर्च करो कि नेक्स्ट फुल मून कब आ रहा है या न्यू मून कब आ रहा है। ये 2 पर्टिकुलर डे हैं, एंड एक्चुअली न्यू मून की एनर्जीज और फुल मून की एनर्जीज मेरे ख्याल से 15 डेज तक रहती है ना कुछ। सो गूगल कर लेना जितने भी टाइम तक रहती है, मुझे अभी जस्ट याद नहीं है। सो बेस्ट रहता है जब आप उसी दिन करो प्रैक्टिस। अगर आपको कोई मेडिटेशन करना है, प्रेफर मेडिटेशन एट नाइट, यानी कि जो टाइम है बिटवीन अराउंड 9 बजे से। यू विल फील, कोशिश करना रियलाइज़ करने की, अवेयरनेस जानना कि जब फुल मून होता है तब 9 बजे के बाद से आपको क्या बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी हो रही है अबाउट माई फ्यूचर, अबाउट वट वॉज हैपन इन माई पास्ट, और वो चीज़ें पास्ट हो चुकी हैं, पता नहीं आज मेरे पास कुछ है भी नहीं है ना हर अपनी लाइफ में। सो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि फुल मून एक टाइम ऐसा होता है जिसमें हमारी इमोशंस में टाइट आती है, जैसे समुद्र में आती है वैसे। तो हम सब लोग इमोशनली तो है ना, क्योंकि वाटर हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है, सो इसीलिए हमारे अंदर भी एक टाइड आती है, इमोशनल टाइड। सो वी हैव टू फेस दिस वेरी ग्रेसफुली बाय मेडिटेटिंग एट दैट टाइम। We can actually heal all the wounds that were within us, or all the things that we were trying to repress or suppress, and we were just giving it more क्या कहेंगे उसको, हम उसको और कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कनेक्शंस में आते हैं, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि हम लोग एक कनेक्शन एंड होता है, हम सेकंड कनेक्शन की तरफ फटाफट से बढ़ने की कोशिश करते हैं
और उसमें हम लोग अपने आप को हाइड करने की कोशिश करते हैं जो भी पिछले ने बोला था। फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुम्हें बोला कि ये चीज़ है ना, यू नो वट, यू शुड चेंज इन योरसेल्फ, आपको लग रहा है आपको नहीं करना चाहिए, एंड अब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ चुकी है। तो आप जब नेक्स्ट टाइम एक कनेक्शन को अप्रोच कर रहे हो, तो आप वो चीज़ें हाइड करने की कोशिश करो या थोड़ी कम शो करने की कोशिश करो, या फिर ऐसे शो करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला आप बहुत बोलते हो, देन यू आर ट्राइंग कि आप जब आप नए कनेक्शन में आ रहे हो, नए कनेक्शन से मिल रहे हो, कोई भी पर्सन से मिल रहे हो, तो आप कोशिश कर रहे हो उसको बोलने की, यू नो वट, लोग बहुत बोलते हैं, मैं बहुत कम बोलती हूँ। यू आर ट्राइंग टू सप्रेस इट और यू आर अनकंडीशनली शोइंग इट। एक्चुअली ना, दिखे सामने वाला नहीं भी ध्यान ध्यान देना चाहेगा तो भी वो ध्यान दे रहा है। तो डोंट डू दिस थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हें और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है एंड तुम्हें और ज़्यादा हर्ट करेगा। एट लास्ट तुम, जब वो कनेक्शन आगे आगे बढ़ेगा तो तुम वही जियोगे जो तुम हो, जो तुम अंदर से हो तुम वही एक्ट करोगे। कितनी ही देर तक तुम फेक एक्ट कर लो। इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर इमोशंस एट दैट टाइम। उसने बोल दिया था ठीक है, लीव इट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। एक्चुअली टाइम है, फुल मून, न्यू मून, और जो भी ऐसे कोई फेस्टिवल का टाइम आता है जो बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस रहता है, इन टाइमों पे अपने आप को हील करो। ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस बताइए, सबसे पहले बताई थी फ्लोर पे बैठने वाली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तुम बैठो, कोई भी चैंट कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट, जो भी भगवान से तुम कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट कर देना और उनसे कहो मुझे इस पर्सन ने ऐसा कहा था, क्या मैं सच में ऐसी हूँ। उनसे कहो, रोने का मन कर रहा है, रो, express yourself, let your energy that was stored within you released. So thank you so much for watching till here. Hare Krishna, thank you so much, and please show your appearance to me. Exchange करो एनर्जी, बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है ये वीडियोस रिकॉर्ड करने में, इनको सब कुछ एनालाइज करने में। तुम्हारा एक लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।